So, beta, what we discussed yesterday, we basically started atomic structure and the concept of subshell and orbitals was studied. We discussed subshells and orbitals yesterday, and then corresponding electrons were studied. So, beta, what I told yesterday, okay, how many subshells are there? 4. 4 4. subshells. One of the subshell is S, the other subshell is P, one of the subshell is T, and the F. last subshell is F. Acha beta, what we discussed yesterday, ke S subshell has how many 1. orbitals? 1 1. orbital. One orbital, okay? And we discussed earlier that orbital is represented with the box. And P subshell has 3. 3 3 orbitals. orbitals. D subshell has 5 5. orbitals. So 1, 7. 2, 3, 4, and 5 orbitals. And beta F subshell has 7 7. orbitals like this. Just 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. Now for electrons, so S subshell can accommodate maximum. Okay, this is for maximum electrons. So S subshell can accommodate maximum 2 electrons, or P subshell में maximum 6 electrons can be placed. D subshell में maximum, जी बेटा D subshell में maximum Sir, D 10 maximum electrons. 10. 10 electrons can be placed, and F subshell में 14. maximum 14 14. electrons can be placed. Okay. Now, beta, how to place electrons in these subshells and orbitals? So, beta, Sir, electrons are placed like this. S में जो 2 electrons होंगे will be placed like this. ठीक है? और बेटा P में 6 electrons को हम ऐसे place करेंगे. 1, 2, 3, then 4, then 5, then 6. Right? Yani electrons will be placed with the same spin, and then they will be paired up. Right? अब D subshell में 10 electrons can be placed, and these 10 electrons will be placed like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. बेटा किसी बच्चे का माइक जो है वो ऑन है, काइंडली म्यूट कर दीजिए. Okay, so these 10 electrons in D subshell will be placed like this, or F में बेटा 14 electrons will be placed like this. These are 7, and then 8, then 9th, then 10th, then 11, 12, 13, and 14. Okay, this is actually we studied yesterday in our face-to-face class. Up today we have to proceed further. तो बेटा फर्दर अगर हम प्रोसीड करें, आई होप कि ये सबको ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर किसी को नहीं क्लियर तो यू कैन रेज क्वेश्चन. ओके, then beta the next concept is we will relate these subshells with shells. Beta shells are known as, what is the technical name of shell? Technically shells are known as Principal quantum. shells are known as principal quantum number. Principal quantum number means shells. Then comes beta subshells. Subshells actually contains orbitals, and orbitals में electrons are present, right? अच्छा, now listen this carefully कि जो first shell है, the very first shell has only one subshell, right? First shell has only one subshell, and that is S subshell. And you know कि S subshell has only one orbital, or one orbital में you know कि maximum 2 electrons can be placed. So it means कि 2 electrons of the first shell are actually present in S subshell and in S orbital, right? जो फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली S सबशेल में प्रेजेंट होते हैं या S ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं. ये क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir.
अच्छा, अब नाउ कम फॉर सेकंड शेल. तो सेकंड शेल हैज टू सब शेल्स S and P. ठीक है. अब बेटा इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये ऊपर वाला जो S है ये फर्स्ट शेल का S सब शेल है, ये नीचे वाला जो S है ये सेकंड शेल का सब शेल है. ठीक है. तो ये ऊपर वाला जो S है इसको हम लेटर ऑन 1S लिखेंगे. 1S का मतलब है फर्स्ट शेल का सब शेल S, और जो नीचे वाला S है उसको हम 2S लिखेंगे लेटर ऑन. 2S का मतलब है सेकंड शेल का सब शेल. राइट. तो जो सेकंड शेल है उसमें हाउ मेनी सब शेल्स? 2 सब शेल्स विल बी प्रेजेंट. तो S has 1 orbital and P has 3 orbitals. ठीक है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल विल बी 8. तो सेकंड शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्लेस्ड इन S सब शेल and 6 electrons will be placed in P subshell. Right? तो फर्स्ट शेल में only 1 subshell is there, लेकिन सेकंड शेल में 2 subshells are present. Any confusion बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर. ओके. मैं थोड़ा सा इसकी बेटा फर्दर डिटेल बता रहा हूं. ओके. ये डिटेल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट टू गो in the deeper inside in the concept. Nucleus, then comes first shell beta, and then comes second shell. अच्छा, ये first shell के 2 electrons हैं, right? This is first shell. Then comes second shell. तो second shell में there exist 8 electrons like this. ठीक है. अच्छा बेटा, एक केमिस्ट थे, उनका नेम आना जरूरी नहीं है, उन्होंने हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट किया. राइट. इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट की गई, उसका पूरा प्रोसीजर है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद पता ये लगा कि सेकंड शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आइडेंटिकल है. ये देखो, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज मैं कर रहा हूं, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी एनर्जी आइडेंटिकल है, और सेकंड शेल के जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट है. तो हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इन 6 में से बेटा, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी E1 है, तो ये पता चला एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी E1 है, ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी भी E1 है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी भी E1 है, फिर ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी भी E1 है, जो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी भी E1 है. तो अब बेटा इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी म्यूचुअली सेम है. ठीक है. लेकिन इसी शेल के, ये सेकंड शेल, इसी सेकंड शेल के जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेट से E2 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी E2 है. राइट. इन दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी म्यूचुअली तो सेम है, लेकिन बाकी 6 से डिफरेंट है. यानी सेकंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी वाइज उनकी 2 क्लासिफिकेशन बन रही है, 2 ग्रुप्स बन रहे हैं. तो यहां से ये पता, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से डिफरेंट आ रही है. ये डेटा जनरेट हुआ. तो ये डेटा जब जनरेट हुआ तो उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट प्रपोज हुआ कि सेकंड शेल हैज 2 subshells. Second shell has 2 subshells. One of the subshell is S subshell. S subshell will have 2 electrons, and the other subshell has P subshell, and the P subshell has 6 electrons. अब बेस क्या बनी सबशेल्स की? यानी ये कैसे पता चला कि शेल्स में सबशेल्स हैं? ये कैसे पता चला कि शेल्स में सबशेल्स हैं? ये पता चला एनर्जी कैलकुलेशन से. Energy of electron actually gave this idea कि shell has subshells. सर, ये एनर्जी वाली बात पता होनी चाहिए.
नहीं, ये एनर्जी वाली बात पता नहीं होनी चाहिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट मैं थोड़ा सा डेप्थ में आना चाह रहा था, इस वजह से मैंने बताया ओके कि सर। ये आइडिया कहाँ से अराइव हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ कि शेल में सब शेल्स हैं। ये पता कैसे चला कि शेल में सब शेल्स हैं? तो ये पता ऐसे चला कि जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज आई तो फिर पता चला कि शेल के अंदर तो सब शेल्स हैं। यानी इस एनर्जी वाइज क्लासिफिकेशन को सब शेल्स से शो किया गया। सर, जी बेटा। इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि हर सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स की अलग एनर्जी है, s की अलग है और p की अलग शाबाश इलेक्ट्रॉन्स बेटा, की शाबाश, एनर्जी। यस बेटा, यही इसी तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ अपने इस लेसन में कि अब हमें ये हमने कॉन्सेप्ट डिड्यूस करना है कि s की एनर्जी डिफरेंट होगी, p की डिफरेंट होगी, d की डिफरेंट होगी। तो एक्चुअली ये जो सबशेल्स बने हैं ये बने ही डिफरेंस ऑफ एनर्जी की वजह से हैं। तो यस, इन सब शेल्स की एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। यस, यू आर राइट, और सही डिडक्शन है आपकी, एप्रिसिएशन फॉर दैट। यस बेटा, और कोई क्वेश्चन या कमेंट? ठीक है, तो बस ये सब बैक ऑफ योर माइंड आपको पता हो कि ये कैसे पता चला कि शेल्स में सब शेल्स हैं। तो ये जब एनर्जीज कैलकुलेट हुई तो तब पता चला कि शेल्स में सब शेल्स हैं, राइट? अच्छा, देन बेटा थर्ड शेल उसके बाद होगा। तो थर्ड शेल में बेटा 3 सब शेल्स होंगे, S, P एंड D, राइट? थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होंगे, S, P एंड D, and S has only 1 orbital, P has 3 orbitals and D has 5 orbitals. तो in total third shell में बेटा maximum how many electrons can be placed? Third shell में Sir, 18. 18 electrons can be placed and they will be classified like this. Like 2 electrons जो third shell के होंगे वो S सब shell में होंगे, 6 electrons जो third shell के होंगे वो P सब shell में होंगे, 10 electrons जो third shell के होंगे वो D सब shell में होंगे। ये जो जी 2 सर। इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी इन 6 इलेक्ट्रॉन्स से डिफरेंट होगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 10 और 2 इलेक्ट्रॉन्स से डिफरेंट, म्यूचुअली ये एनर्जी वाइज डिफरेंट होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो आई होप के साथ साथ आपको याद होता जा रहा है। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल है, दैट इज एस। सर P में 6 क्यों होंगे? पी में बेटा देखें, सामने स्क्रीन को देखें, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 1, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में ओके मैक्सिमम सर, 2। यस सर, आई गेट इट। So 2, 3, 4, 5 and 6. So in this way 6 electrons can be placed in P. और D का देखो तो D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं। D आपके सामने, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करो तो 10 बनेंगे, राइट? देन कम्स बेटा फोर्थ शेल। हम फोर्थ शेल तक ही डिस्कशन करेंगे, आपके सिलेबस में की डिस्कशन विल बी अप टिल शेल नंबर 4। तो बेटा फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होंगे, फोर्थ शेल में 4 सब शेल होंगे, S, P, D and F। ठीक है, S has 1 orbital, P has 3 orbitals, D has 5 orbitals and F has 7 orbitals. So now better deduce कि how many electrons, maximum electrons that you can place in fourth shell? 32. हाँ, फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड, 2 in S, 6 in P, 10 in D and 14 in F. So maximum 32 electrons can be placed like this. तो ये फोर्थ शेल की डिस्कशन थी, ठीक है? अच्छा बेटा, मैं थर्ड वाला आपने बताया SPD वाला, उसमें वो D के हम लोग के पास 8 इलेक्ट्रॉन देके 10 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्योंकि सर थर्ड शेल के लिए तो सिर्फ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हम लोग। अच्छा बेटा, जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है, ओ लेवल्स में आपने पढ़ा है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, चौथे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओ लेवल्स में ऐसे पढ़ा है आपको,
ओ लेवल्स में आपको पढ़ाया गया कि ऐसे यस सर। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में भी 8 हैं, फोर्थ में भी 8 हैं। बेटा नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि जो एक है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स और एक है इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेबलाइज वैलेंस शेल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर थर्ड शेल में हैं, ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल इज स्टेबल। 8 इलेक्ट्रॉन से थर्ड शेल बिकम स्टेबल। लेकिन थर्ड शेल में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फॉर थर्ड शेल आर 18। थर्ड शेल के लिए बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर 18। लेकिन Okay, अगर sir. 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है थर्ड शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शेल विल बी स्टेबल। तो थर्ड शेल विल बी स्टेबल ईदर विद 8 और 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्सेप्ट है, राइट? Okay, थर्ड sir. शेल विल बी स्टेबल विद ईदर 8 और 18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सर बेटा, लाइक पेपर में हम लोग को बताएंगे कि हम लोगों ने लाइक स्टेबल शेल का बताना है या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने बताने हैं? हाँ, पेपर में जो क्वेश्चन होगा और अभी जो हम इस चैप्टर की डिस्कशन होगी उसके बाद आपका एक आइडिया इवॉल्व होगा और उसको आपने उस आइडिया को एक्सरसाइज करना है और उसके लिए आपको ये डिस्कशन सुननी होगी आज की भी और कल की भी, और फिर थर्सडे को ये कंप्लीशन में आएगा। ओके सर। अच्छा, इसी तरह बेटा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फोर्थ शेल के वो 32 हैं। फोर्थ शेल में बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड आर 32। लेकिन अगर 32 नहीं अवेलेबल और 8 इलेक्ट्रॉन्स आप फोर्थ शेल में प्लेस कर दें तो शेल विल बी स्टेबल। तो 8 इलेक्ट्रॉन से शेल स्टेबल हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने प्लेस हो सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का आप इधर से बेटा कंक्लूड करोगे, ये देख लो सामने, यहां से आप कंक्लूड करोगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने प्लेस होंगे। तो फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम प्लेस हो सकते हैं। ओके सर। और थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं और सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा प्लेस हो सकते हैं। एंड हियर 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। सर लेकिन जो फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम और स्टेबल शेल दोनों सेम है ना? यस यस यस, Okay. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और स्टेबिलिटी के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, ठीक है? क्योंकि जिन एलिमेंट्स का फर्स्ट शेल लास्ट शेल होगा वो डबलेट रूल फॉलो करेंगे। डबलेट रूल मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, और 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बेटा तब होंगे जब पहला शेल ही आखिरी शेल हो। जब पहला शेल ही आखिरी शेल हो तो तब 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी आएगी, लाइक फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है? यस, और कोई क्वेश्चन? नो सर। सर एक सवाल है। जी जी। तो अगर आखिरी जो भी शेल होगी आखिरी अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो स्टेबिलिटी हो जाएगी? ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। चाहे अगर थर्ड भी हो, आखिरी शेल में या 8 होने चाहिए या जो मैक्सिमम उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने होने चाहिए। जी सर। आखिरी शेल में सर, या तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 होने चाहिए, तो तब स्टेबिलिटी सर। अचीव होगी। जी सर जी, मतलब यस। उस शेल में 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब अगर 8 ना हो तो? हाँ, 8 ना हो तो फिर 32 आते हैं। यस, देखो जैसे एक घर है ना, घर में डिफरेंट रूम्स हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम कैपेसिटी रूम्स की ज्यादा होती है। जैसे एक घर में ज्यादा रूम्स हैं तो ज्यादा लोग उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि उन रूम्स में सब लोग रह रहे हों, ठीक है? तो इसी तरह ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो जरूरी नहीं कि सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हों। सर समझ गए। ओके। सर अगर हमने एटम जैसा हम ड्रॉ करते थे ओ लेवल्स में, तो जैसा अगर हो 288, तो नहीं, अगर हम ऐसा जी ड्रॉ जी, करते थे 2881, तो हाँ, ये आप अभी हम पोटेशियम ऐसे के लिए करेंगे करते थे। आप पोटेशियम के 289। लिए नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप एस और पी और डी को इन्वॉल्व करोगे, आप देखो कैसे इन्वॉल्व करना, हम उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब इस बेटा आप देखो, ये अभी आंसर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन का। देखो मैं अगर लिखूं 1s तो इसका क्या मीनिंग है? The S subshell of first. S सबशेल एंड 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंस यानी फर्स्ट शेल का सबशेल S, ठीक है? देन आई राइट 2s and 2p. व्हाट इट मींस? इट मींस कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 and subshells are S and P, and we know कि second shell में only 2 subshells are there, S and P. और फिर I am writing 3s,
3p and 3d, and we know कि third shell में 3 subshells are present, s, p and d. ठीक है, for fourth shell I will write like this: 4s, 4p, 4d and 4f, and we know that कि fourth shell में 4 subshells are present, s, p and d. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट नहीं हो सकता, लाइक 3s या 4p और फिर 4d 3s, फिर ये 4p? मैं बेटा, हाँ ये मैं शेल वाइज बता रहा हूँ कि फर्स्ट शेल में ये एक सब शेल है, फिर सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, फिर थर्ड शेल में, और शेल वाइज इसलिए मूव करें कि इनकी एनर्जीज ग्रेजुअली इंक्रीज होंगी। तो सर लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट नहीं हो सकता सर शेल के अंदर? शेल के अंदर कैसे डिफरेंट होगा बेटा? ये देखो, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो शेल भी 1 है, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो शेल भी 2 है, ओके सर समझ आ गई। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो शेल भी 3 है, राइट? अच्छा सर जी जी, सर तो इसकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे, मतलब हर एक का डिफरेंट एनर्जीज होंगी। हाँ एनर्जी होगी, अभी मैं एनर्जी पे जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद बेटा फिफ्थ शेल में मैं आपको जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज कि फिफ्थ शेल में भी ये 4 सब शेल्स ही होंगे, 5s, 5p, 5d एंड 5f, क्योंकि सब शेल्स 4 से ज्यादा नहीं हैं अवेलेबल, ठीक है। जो सब शेल्स हैं वो 4 सब शेल्स हैं। अभी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे 4 सब शेल से कवर हो जाते हैं, तो फिफ्थ शेल में भी 4 सब शेल होंगे। जिस तरह फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स हैं, फिफ्थ शेल में भी 4 सब शेल्स होंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि फिफ्थ शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं? 32। 32, क्योंकि आपने देखा कि फोर्थ शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 32 प्लेस हो रहे थे, तो फिफ्थ शेल में भी उसी तरह के सब शेल्स हैं, तो फिफ्थ शेल की भी मैक्सिमम कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स है। फिफ्थ शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आगे जा रहा हूं कि सिक्स्थ शेल में भी यही सिचुएशन होगी, सिक्स्थ शेल में भी यही सिचुएशन है, राइट? और सिक्स्थ शेल में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 32 होंगे, राइट? तो अब ये मैं रब कर देता हूं, हम फोर्थ शेल तक ही डिस्कशन को रखते हैं, लेकिन वो मैं जो आगे गया था वो जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आगे गया था। अच्छा ओके, अब आ जाए बेटा एनर्जीज पे, ठीक है। ये ध्यान में रखें, फर्स्ट शेल में एक सब शेल है S, सेकंड शेल में S और P है, थर्ड शेल में S, P, D है, फोर्थ शेल में S, P, D और F है। अच्छा, अब मैं एनर्जीज पे बेटा आ रहा हूं, मैं स्लाइड डाउन करूं। आई होप अगर आप लिख रहे हैं तो यू आर डन विद द राइटिंग, आई होप। ओके, ना बेटा यू नीड टू, अभी गौर से सुने तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, मेमोराइज ही करना है कि लो एनर्जी ऑर्बिटल्स या लो एनर्जी सब शेल्स और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, और सब ने गौर से देखना बेटा, और ट्राई टू मेमोराइज, इसी क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए। बाद में देयर टू मेनी थिंग्स टू मेमोराइज, तो अभी इसको इधर ही याद करना। सबसे कम एनर्जी बेटा 1s की है, राइट? सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की, ठीक है। 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s की, फिर 2p की, उसके बाद बेटा 3s की, राइट? उसके बाद 3p की। अच्छा, 3p के बाद आपके जहन में क्या आ रहा है? थ्री डी। हाँ, आप लोगों के जहन में 3d आ रहा होगा बेटा। ये असेंडिंग ऑर्डर है एनर्जी का, राइट? ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये है असेंडिंग ऑर्डर एनर्जी का। अच्छा, अब 3p के बाद आपके जहन में 3d आ रहा होगा, लेकिन 3d नहीं है। 3p के बाद जो एनर्जी है वो 4s की है, ठीक है। और उसके बाद फिर 3d है। इसको एब्जॉर्ब करें बेटा, एब्जॉर्ब करें, और ये आपको याद होना चाहिए। सर इधर समझा नहीं कुछ। अच्छा, ये हाँ यस, मैं फिर बता रहा हूं। सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की, ठीक है।
1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s की एनर्जी है, उसके बाद 2p की एनर्जी होगी, उसके बाद 3s है, 3s के बाद 3p की एनर्जी होगी, 3p के बाद 4s की एनर्जी है, 4s के बाद 3d की एनर्जी होगी। ये असेंडिंग ऑर्डर है एनर्जी का, इस तरह से असेंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर एनर्जी। 4p की है। अब मैं समझ गया। ठीक है जी बेटा, क्या क्वेश्चन था? सर उसके बाद फिर 4p की है, क्योंकि हाँ यस, 3 3d, से वो यस कम यस, होता है। गुड गुड बेटा, वेरी गुड। 3d के बाद 4p होगा और 4p के बाद 5s, बस यहां तक आना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने 5s तक आना है मैक्सिमम, और ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। आप इसको याद कर लें, मैं पूछूंगा आप लोगों से। ये आपको याद हो गया एनर्जी ऑर्डर बेटा? इसको जहन में बिठाएं, याद कर लें। डन? चलें, अब मेरा क्वेश्चन है, लुक कि इफ आई ड्रॉ एनर्जी एक्सिस हियर, ठीक है, एक मिनट, दिस इज एनर्जी एक्सिस, राइट? ये एनर्जी एक्सिस है जी। बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s। 1s। सर वैसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने f और d इतना ज्यादा क्यों नहीं डाला वो एनर्जी वाली चीज के अंदर? क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। ओके सर। वो सिलेबस में नहीं, जितना कंटेंट सिलेबस में है मैं उतना कंटेंट रखना चाह रहा हूँ, सो दैट कि बस टू द पॉइंट आप लोगों की हो और रेलेवेंट डेप्थ हो। जो जहां मैं डेप्थ में जा रहा हूँ वो इसलिए जा रहा हूँ कि कल को एंट्री टेस्ट अगर आपको देना पड़े तो आप मैनेज कर सको, अदरवाइज इररेलेवेंट डेप्थ में मैं नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, 1s के बाद जी बेटा किसकी एनर्जी होगी? 2s 2s, बराबर। 2s 2s के बाद 2p 2p की होगी, 2p के बाद 3s 3s की होगी, 3s के बाद 3p 3p की होगी, 3p के बाद 4s। हाँ देखिए, नोट करें इसको, मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ कि 3p के बाद एनर्जी एक्सिस पे 3d नहीं है, 4s है। 4s के बाद 3d है। हाँ 4s के बाद फिर 3d है, फिर फिर 4p सर, 3d के बाद 4p 4p 4p, और 4p फिर के बाद 5s। 5s आई होप कि ये आपको याद हो गया एनर्जी ऑर्डर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे एनर्जी ऑर्डर का तो ये एनर्जी ऑर्डर है जो आपने बताना, राइट? आपने ये एनर्जी ऑर्डर है जो आपने बताना है, मेंशन करना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक रूल है और वो रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्लेस्ड in low energy orbital first, in low energy orbitals first, and then in high energy orbital, then in high energy orbitals in ascending order। ठीक है? रूल बेटा देख लें, रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले आपने लो एनर्जी ऑर्बिटल में प्लेस करना है, फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल में प्लेस करना। ठीक है? अब मुझे बताओ, और ये गौर से सुनो, सपोज पोटेशियम में ले रहा हूं, ठीक है? अच्छा, पोटेशियम के प्रोटॉन नंबर 19 है, तो देयर आर 19 इलेक्ट्रॉन्स, 19 इलेक्ट्रॉन्स हुए पोटेशियम में। अब इस रूल, व्हाट दिस रूल सेज, रूल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को आपने प्लेस करना है लो एनर्जी ऑर्बिटल में, और कितने? 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर प्लेस होंगे, बिकॉज यू नो कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है? तो 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दिए, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से आपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है, फिर उसके बाद 2s में आप इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं, राइट? समझ आ रही है बेटा? जी सर। सर क्या थोड़ा सा दोबारा समझा सकते हैं? जी जी, एक मिनट, मैंने 19 बहुत बड़ा ले लिया, मैं स्मॉलर एटम लेता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं सोडियम ले रहा हूँ। सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। प्रोटॉन नंबर सोडियम का क्या है बेटा? 11। तो सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। रूल देखें, रूल कहता है कि लो एनर्जी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे,
फिर यूं ग्रेजुअली जिस तरह ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती जाएगी उस तरह इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐसे प्लेस करना है कि लो एनर्जी में पहले प्लेस करने हैं। तो s में आप पहले 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दें, क्योंकि s आपको पता है ना, s में एक ऑर्बिटल है, ये पता है आपको। s में कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं 1s में। उसके बाद 2s आएगा। 2s में भी आपको पता है कि s हैज 1 ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 प्लेस हो गए, ठीक है। उसके बाद ये p है, तो p में बेटा कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 और आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है, जिसमें 4 आपने प्लेस किए हैं। तो 5 6 7 8 9 10। तो p में कितने प्लेस हो गए? 6। टोटल कितने प्लेस हो गए बेटा? टोटल अभी 10 प्लेस हो गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। एक इलेक्ट्रॉन आप इधर प्लेस करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहां प्लेस हो गया। अब आप इसको अगर यूं लिखें 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ये बेटा समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है। रूल ये है कि जो लो एनर्जी ऑर्बिटल है ना, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं और फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ जाना। जिनको समझ नहीं आई वो बताएं मुझे। जिनको समझ नहीं आई वो बताएं बेटा। सर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं जो 1s2 है, मतलब के ऊपर जो लिखा हुआ है। हाँ, जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करता है। ऊपर जो मैंने लिखा है s के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p के ऊपर मैंने 6 लिखा है, मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल क्लोरीन का आपसे पूछें तो क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 है, तो देयर एग्जिस्ट 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे कम एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? 1s है ना, 1s है। उसके बाद 2s है, उसके बाद 2p है, उसके बाद 3s है, 3s के बाद 3p, 3p के बाद क्या है? 4s की एनर्जी। 3p के बाद एनर्जी वाइज 4s आएगा और उसके बाद एनर्जी वाइज 3d आएगा। 3d के बाद एनर्जी वाइज 4p और फिर 5s, ठीक है। अब आपने 17 इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्लेस करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्लेस होंगे, क्योंकि आपको पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर प्लेस होंगे बिकॉज यू नो कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे बिकॉज यू नो कि p में मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं। अभी तक हमने कितने प्लेस कर दिए हैं? 10 में से 2 इधर प्लेस करें, 12 हो गए। कितने रह गए? 5। तो 5। अब p में 6 आ सकते हैं लेकिन 6 अवेलेबल नहीं है, तो जितने अवेलेबल हैं वो p में प्लेस करें। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आप p में प्लेस करें। अच्छा, जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं प्लेस हुए उन्हें रब कर दें। जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्लेस हुए उन्हें रब कर दें, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 2 मार्क्स का, वरना 1 मार्क का भी पूछा जा सकता। तो ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एनी कंफ्यूजन बेटा? अब नो मुझे सर। बताओ कि अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के कितने? 13 है प्रोटॉन नंबर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम में 13 है, ठीक है। तो सबसे लो एनर्जी ऑर्बिटल 1s में प्लेस करें। 1s में कितने प्लेस होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके बाद 2s में प्लेस करें, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होंगे। उसके बाद 2p में प्लेस करें, ठीक है। तो कितने प्लेस हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो गए। देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर प्लेस करें 3s में, 12 प्लेस हो गए। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? रह जाएगा 3p में 1 रह जाएगा, यस। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन अगर 6 अवेलेबल ना हो
तो फिर जितने अवेलेबल हैं उतने प्लेस करेंगे पी में। समझ आ रही है? जी सर। यस सर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम की है। ठीक है, ये नीचे वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम की है। अच्छा, मैं कोई और एलिमेंट भी ले लूं, लेट्स से मैग्नीशियम को ले लें या लिथियम को ले लें। चलें लिथियम ले लें। लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 है बेटा। अब ये प्रोटॉन नंबर 3 आप कैसे प्लेस करेंगे? 1s में आप प्लेस करें 2 एंड 2s1 2s1। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। जी अच्छा, सर। अब अगर हीलियम है, हीलियम के टोटल प्रोटॉन नंबर 2 है, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। 1s स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बेटा ये एक और बात बताऊं कि अब इस क्लोरीन को बेटा देखो, क्लोरीन में बिल्कुल आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्लेस हुआ? लास्ट इलेक्ट्रॉन, द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्लेस किया? 3p। में। ये बेटा सबको ये पिक हुआ ये पॉइंट कि क्लोरीन में द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन वाज प्लेस, सबसे एंड में पी ही आ रहा ना, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में प्लेस हुआ। तो हम क्लोरीन को बोलेंगे कि इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लोरीन इज पी ब्लॉक एलिमेंट। व्हाई? Because the very last electron in chlorine is placed in p subshell. That is why chlorine is p block element. Right? ठीक है। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम क्या सर? एल्यूमिनियम कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा? P block. P block सर। हाँ, एल्यूमिनियम is p block element. Why? Because the very last electron in aluminum placed in p subshell. So aluminum also belongs to p block element. Also, aluminum is also p block element or belongs to p block. Lithium में last electron हाँ, तो lithium एस ब्लॉक एलिमेंट। s block element। शाबाश। और lithium हीलियम भी सर s block ही होगा। हाँ, हीलियम की एक्चुअली में की जो पोजीशन है ना, उस पर कंट्रोवर्सी है कि हीलियम की पोजीशन जो पीरियोडिक टेबल में है, इसमें बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो हीलियम ठीक। को यस उस रूल के मुताबिक देखें तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। जो रूल मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से हीलियम एस ब्लॉक बन रहा है। ठीक है जी सर। हीलियम पे हम क्लास में जब पीरियोडिक टेबल ओपन करेंगे तो थोड़ी डिस्कशन कर सकते हैं। ओके। अच्छा, आपको बेटा कॉन्फ़िगरेशन की समझ में आई? तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई। यस अभी सर। बिल्कुल इनिशियल स्केल में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ब्लॉक्स का आइडिया दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं कार्बन, तो कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 है। सो हाउ टू राइट, पहले तो मुझे बताएं ऑर्बिटल्स एनर्जी वाइज कैसे हम प्लेस करेंगे। 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s 2p फिर 2p, फिर 3s 3p, 3p के बाद 4s 4s की एनर्जी है। 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p के बाद 5s 5s। ठीक है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने प्लेस करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर प्लेस करेंगे, 2 इधर प्लेस करेंगे 4, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर प्लेस करेंगे 6। और जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस नहीं हुए उन्हें रब कर दें। जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस नहीं हुए उन्हें रब कर दें। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन। अब कार्बन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? p block P P block। block. Why it is P block? Because the very last electron placed in P subshell. That is why carbon belongs to P block. ठीक है, एक और लास्ट ले लें। सोडियम को अगर हम लें तो सोडियम प्रोटॉन नंबर इज 11, तो सबसे कम एनर्जी 1s की है, 1s2, then comes 2s2, then 2p 6 and then 3s 1। तो सोडियम belongs to which block? S block. Sodium is S block element। बेटा ये क्लियर है सबको?
जी सर। यस सर। यस सर। ये बिल्कुल इनिशियल फेज में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई। अब इसमें आगे डेप्थ में हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन की, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ट्विस्ट्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं जो कॉन्फ़िगरेशन में, स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जरा वो क्लास में करेंगे कल। तो ये जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी तो सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट जिसकी डिटेल हम कल डिस्कस करेंगे। ये सोडियम है बेटा, बेटा देखें सोडियम। अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर कोई पूछे कि सोडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हाउ विल यू रिप्लाई? 1 1 हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड। क्योंकि देखो 1s2 इज लाइक दिस, तो दिस इज पेयर्ड, 2s2 इज लाइक दिस, तो दिस इज पेयर्ड, 2p6 इज लाइक दिस, तो 2p6 को 1 2 3 4 5 6 तो ये पेयर्ड हैं, लेकिन 3s1 इज लाइक दिस, सो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन? सर नो। 0 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कार्बन में 4। 4 अच्छा देखो 1s2 is like this ना, 1s2 is like this, then 2s2 is like this। कार्बन में 2a सर इसके बजाय इस दो पूरे को unpaired करने है। के बजाय हम लोग सिंपली आखिरी वाले ब्लॉक को देख सकते हैं, हाँ, क्योंकि yes, बाकी तो उससे पिछले yes, तो yes, फुल है। उससे फुल है, लेकिन चूंकि मेरे सामने तो पूरी क्लास है ना और ऑनलाइन है, तो इसलिए मैं बार बार बाकियों को भी कर रहा हूँ। लेकिन यस, एग्जाम में आप टाइम आपने बचाना है, एमसीक्यूज में तो आपने टाइम सेव करना है, तो आखिरी वाले को आप देखा करें, आखिरी वाले से पहले फुल होते हैं, ठीक है। तो आपने लास्ट वाले को देखना है, उससे आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन चूंकि मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बहुत से बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं सबके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो P2 बेटा देखो, P2 में इस तरह से प्लेस करना है इलेक्ट्रॉन्स। आपको कल मैंने क्लास में बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन के साथ प्लेस करना है। तो अब ये जी सर। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। P में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, P2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए बेटा? 2। और सोडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1। 1 अच्छा, जब आप पास पेपर या वर्कशीट ओपन करेंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको काफी मिलेंगे। तो ये काफी इट्स अ वेरी एक्टिव कॉन्सेप्ट टू आस्क फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में यू विल फेस दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थिंग। तो वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो बेटा दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। लेसन इज रिकॉर्डेड, और ये लेसन बेटा मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप में से इस लेसन को बाद में देखना चाहते हैं कुछ बच्चे, तो देख सकेंगे। मैं जैसे फ्री